Dear children, this is the chapter number 16, Rural Development and Employment Guarantee Scheme. This is your economics part of your social science book. In this chapter, we will read about the need and importance of the National Rural Employment Guarantee Schemes and National Rural Employment Objectives. Children, we all know that most of the population of India lives in the villages. As per the census 2011, a large proportion of the population of India, that is 68.8%, lives in villages. Therefore, the rural area should be developed in such a manner that the rural people get employment locally. That is, they are not required to move out of their villages from employment. Employment opportunities and other social amenities and basic necessities should be available locally so that migration of rural population could be checked. Because if the villages were developed, then the Indian economy will also develop. तो चिल्ड्रन, आप सभी जानते हैं कि भारत में अधिक से अधिक जनता गाँव में निवास करती है और उनका मुख्य जो व्यवसाय है वो खेती है. 2011 के अनुसार 68.8% पॉपुलेशन जो है वो गांव में थी. अभी भी जो हमारा ग्रामीण जीवन है, अब वो इतना समृद्ध होना चाहिए, अभी भी हो नहीं सका है, लेकिन इतना समृद्ध होना चाहिए कि वहाँ से जो लोग शहरों की तरफ पलायन करते हैं वो ना करें. तो इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी योजनाएं बना रखी हैं, बहुत सारे ऐसे उन्होंने पॉलिसीज़ चलाई हैं जिससे कि जो गांव के लोग वो गांव में ही रहें और वहीं रोजगार प्राप्त कर सकें. द नीड फॉर द Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme. According to the Gazetteer of India, 31st December 2009, the name of the National Rural Employment Guarantee Scheme 2005 has been changed and named Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act 2005 since 2nd October 2010. जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 2005 में गवर्नमेंट ने राष्ट्रीय रोजगार योजना शुरू की थी, जो कि गजेटर ऑफ 31 दिसंबर 2009 के अंडर में उन्होंने 2 अक्टूबर 2010 को उसका नाम चेंज करके महात्मा गांधी रोजगार गारंटी एक्ट 2005 कर दिया. Last 3 decades, 1973 to 2003, have witnessed many major economic changes in the Indian economy. As a result of these changes, there has been a considerable change in the share of agriculture, secondary activities and third service center in gross domestic product. In the year 1973, the share of agriculture sector in the gross domestic product means GDP was about 45%. Secondary sector percentage was 30% and the contribution of the service sector was 25% to the gross domestic product. But in 2003, the contribution of service sector increased to 50% of GDP. The secondary sector contributed 30% to the GDP, but the share of the agriculture was reduced to only about 22%. Even then, the agriculture sector gives employment to about 60% people. It is clear that the number of people employed in the agriculture sector are more than the needed number. अब हम लास्ट 3 डिकेड से देख सकते हैं कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसमें बहुत परिवर्तन हुए हैं, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो चाहे और दूसरे क्षेत्र हों. तो जो हमारी जीडीपी है सबसे ज़्यादा जब 1973 में जब उसका कैलकुलेशन हुआ तो जो एग्रीकल्चर सेक्टर था उसने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के लिए 45% का कंट्रीब्यूशन दिया था. वहीं सेकेंडरी सेक्टर ने 30% और सर्विस सेक्टर ने 25%. वहीं 2003 में वह लेस होकर के एग्रीकल्चर का जो परसेंटेज था वो 22% ही रह गया, जबकि जो एग्रीकल्चर में है 60% लगभग लोग जो है वो वर्क कर रहे हैं. तो यहाँ पर ये देखा गया कि वहाँ पर यदि कुछ लोगों को वहाँ से कम भी कर दिया जाए तो वहाँ के प्रोडक्शन में, एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन में कोई अंतर नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर ज़रूरत से ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर के क्षेत्र में लगे हुए हैं. अब यदि कहीं पर लेबर ज़्यादा है तो स्वाभाविक रूप से वहाँ पर जो है कंपटीशन ज़्यादा होगा और इसलिए बेरोजगारी की समस्या भी बढ़ी हुई
होगी। तो इसके कारण जो वहाँ पर लोग हैं बहुत सारी उनको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो ये जो कुछ रीज़न है कि क्या प्रॉब्लम्स उनको सामना करना पड़ता है, किन प्रॉब्लम्स का उन्हें सामना करना पड़ता है, वो है ड्यू टू इनएडिकेट एवेन्यूज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मोर देन रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, द रूरल पीपल आर नॉट गेटिंग प्रॉपर रिटर्न फॉर देयर लेबर। सबसे बड़ी बात तो ज़्यादा लोग होने की वजह से उन्हें अपने लेबर का प्रॉपर रिटर्न नहीं मिलता, कम से कम मजदूरी पर वो काम करते हैं। द पीपल आर इकोनॉमिकली इनसिक्योर ड्यू टू लिमिटेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। अब लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ होने के कारण वो उनकी इकोनॉमी सिक्योर नहीं होती है। Due to non-availability of employment opportunities in rural areas, the people are forced to migrate to urban areas. Limited opportunities of employment for women in rural areas gives rise to the twin problem. First, underuse of women problem, and second is improper payment for their labor. A lack of infrastructural facilities needed for employment, new avenues of employment are not available. Due to this, the standard of living of rural families does not improve. तो आपने देखा बहुत सारी समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ता है। वीमेन होती हैं, उनको अंडर में काम करना होता है। दो समस्याओं को, एक तो उन किसी के अंडर में काम करना होगा और उनके लेबर की उन्हें पूरी मजदूरी भी नहीं मिलती है, और अपॉर्चुनिटीज़ एम्प्लॉयमेंट की अच्छी नहीं होने के कारण लोगों को बाहर के एरियाज़ में जाना पड़ता है। इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ नहीं होने की वजह से जो रूरल फैमिलीज़ हैं उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी नहीं बढ़ पाता है। So it is necessary to provide employment to the rural people as and when they need to solve their problems. Therefore, the National Rural Employment Guarantee Act has been enforced, keeping these objective in view. इसलिए गवर्नमेंट ने सारी योजनाएं चलाई हैं ताकि उनकी जो बेसिक नीड्स है, जो आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति की जा सके और वो उनका जीवन स्तर सुधार सके। Now, objectives of the National Rural Employment Guarantee Scheme: to provide at least 100 days employment to the adult member of each family living in rural areas who are willing to do unskilled labor, and second, to create permanent assets in rural areas. तो पहला तो ये है, उद्देश्य क्या है, ये नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के उद्देश्य क्या है। सबसे पहला तो किसी एक फैमिली में से किसी एक मेंबर को जो कि विलिंग हो, वर्क कर सकने में सक्षम हो, उसे 100 डेज का रोजगार निश्चित रूप से दिया जाएगा। वो और अनस्किल्ड वर्क होगा, मतलब उसमें किसी खास कुशलता की ज़रूरत नहीं होगी। और सेकंड इसका ये है कि जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं वहाँ पर जो परमानेंट एसेट्स, स्थायी परिसंपत्तियाँ हैं, उनका सृजन करना, उन्हें क्रिएट करना। नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। अब इस स्कीम की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि ये है कि अवेलेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट अंडर द स्कीम इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, पहले आओ पहले पाओ। Employment is given on work which are already going on. It's the area of or new work are started from the shelf of schemes. Employment can also be given on work implemented by other agencies. अब जो एम्प्लॉयमेंट वो किस तरह से दिया जा रहा है, तो या तो पहले से उस क्षेत्र में काम चल रहा हो, या फिर पंचायत ने कोई प्रोजेक्ट लगाया हो उसके द्वारा, या फिर कोई अन्य एजेंसी भी वहाँ पर काम कर रही हो, तो उसमें भी इनको रोजगार दिया जा सकता है। And it is borne in mind that the work site is within 5 kilometer radius. If it is not possible to provide work within a radius of 5 kilometer, then the Janpad Panchayat provide employment an additional amount to extent of 10% of the minimum wages. अब रोजगार देते समय ध्यान रखा जाता है कि 5 किलोमीटर के अंडर में ही उसे रोजगार मिले। यदि किसी केस में ऐसा हो गया कि नहीं दे पा रहे हैं 5 किलोमीटर के अंडर में, तो फिर ये जनपद पंचायत को ये जवाबदारी सौंप दी जाती है कि वह न्यूनतम मजदूरी के साथ साथ 10% का एक्स्ट्रा पे भी करेगा यदि मजदूर दूर जा रहा है काम करने के लिए। तो अब वीमेन के लिए भी इसमें रोजगार है, साथ ही साथ जो ओल्ड है, इन्फर्म है या डिसेबल्ड पीपल है, उनके लिए भी स्कीम्स हैं इसमें। तो सबके लिए रोजगार इसमें है। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स यू हैव टू रीड डीपली। नाउ मेन फीचर्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम। तो जो मेन फीचर्स हैं वो हैं प्रोसीजर टू प्रोक्योर वर्क,
जॉब कार्ड, फैसिलिटीज प्रोवाइडेड ऑन वर्क साइट, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस और रोल ऑफ ग्राम पंचायत, जनपद, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशंस. सो 4 फीचर्स हैं: प्रोसीजर टू प्रोक्योर वर्क, जॉब कार्ड, फैसिलिटीज प्रोवाइडेड ऑन वर्क साइड और अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस. उसके बाद पंचायत का, जनपद का, डिस्ट्रिक्ट का, स्टेट लेवल इंस्टीट्यूट का क्या रोल होता है इस सब में, वह इसमें बताया गया है. अब कुछ प्रोसीजर भी होता है कि किसे काम मिलेगा. ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति पहुंच गया और उसे काम मिलेगा, तो उसकी कुछ कंडीशंस हैं. द फैमिली शुड बी लोकल रेसिडेंट ऑफ द ग्राम पंचायत, वो ग्राम पंचायत के अंडर में आनी चाहिए वो फैमिली. फिर सेकंड है द फैमिली शुड बी रजिस्टर्ड इन द लोकल ग्राम पंचायत, और रजिस्टर भी होना चाहिए लोकल ग्राम पंचायत में. द फैमिली शुड ऑब्टेन अ जॉब कार्ड फ्रॉम ग्राम पंचायत से जॉब कार्ड मिला होना चाहिए. द फैमिली शुड अप्लाई फॉर वर्क एज अनस्किल्ड वर्कर ऑन द बेसिस ऑफ द जॉब कार्ड. अब जॉब कार्ड पे बेसिस पे ये हो, उसमें मेंशन होना चाहिए कि वो अनस्किल्ड वर्कर है. और सबसे बड़ी बात की फैमिली शुड बी रेडी टू वर्क अनस्किल्ड लेबरर. अनस्किल्ड लेबरर के लिए जो फैमिली है उसे काम करने के लिए उसे तैयार होना चाहिए, रेडी होना चाहिए, तभी उन्हें 100 डेज का जो है वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाता है. अब ये जॉब कार्ड क्या है? अ जॉब कार्ड इज इशूड टू रजिस्टर्ड फैमिलीज इन विच ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द फैमिली इज गिवन. द जॉब कार्ड इज वैलिड फॉर 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ इशू एंड इज रीन्यूड बाय द ग्राम पंचायत विद इन 1 month फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपायरी. अभी जॉब कार्ड जैसे कि आप देख रहे हैं, यह जो गवर्नमेंट की तरफ से, पंचायत की तरफ से जो लेबर है उसे प्रोवाइड किया जाता है, फैमिली को प्रोवाइड किया जाता है. इसमें उनकी पूरी जानकारी होती है. या 5 year के लिए वैलिड होता है, और जब इसकी डेट समाप्त होती है तो उसे 1 महीने के अंदर फिर से रीन्यू कराया जा सकता है. And the job card issued on the basis of the BPL survey and the Gram Panchayat is competent to make any change in the job card. Job card जो होता है BPL सर्वे के बेसिस पर बनता है और ग्राम पंचायत को उसमें कोई भी चेंज करने के अधिकार होते हैं. If the card is lost or mutilated, a new card can be obtained on payment of prescribed fees. यदि कार्ड किसी वजह से ख़राब हो जाए या गुम जाए तो फिर कुछ एक निश्चित फीस जमा करके उसे दोबारा बनवाया जा सकता है. नाउ फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड ऑन वर्क साइट. अब वर्क साइट पर भी कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, जो कि है सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड शेल्टर फॉर रेस्ट, फर्स्ट एड फैसिलिटीज एंड मेडिसिन्स इन केस ऑफ इंजरी. इफ देयर आर 5 or more children below 6 years of age with the working women, a separate women worker shall be entrusted the job of looking after such children. If a worker is injured during the work, necessary facility for treatment, and in case of physical disability or death during the work, compensation is given. अब ये सारी फैसिलिटीज़ वर्क साइट पर प्रोवाइड की जाती है. अच्छा पानी हो, शेल्टर हो, फर्स्ट एड हो, यदि किसी को चोट लग गई है तो उसे मेडिसिन दी जा सके, उसकी ट्रीटमेंट किया जा सके. यदि 6 years से कम उम्र के 5 से ज़्यादा बच्चे हों तो उसकी देखभाल के लिए अलग से एक महिला को रखा जाता है कि वो उन बच्चों की देखभाल करे, बाकी काम करें. इसके साथ साथ यदि काम करते वक्त किसी को कोई अपंग हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, तो उसके लिए भी उसे कॉम्पनसेशन की व्यवस्था की गई है. एंड फोर्थ एंड लास्ट फीचर जो है वो है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, मीन्स बेरोजगारी भत्ता. If a person doesn't get work within 15 days from the date of application, she is entitled to unemployment allowance, but the aggregate amount of unemployment allowance and the minimum wages are already paid to that family will not exceed an amount which is equal to 100 days minimum wages. अब यदि काम मांगने के 15 डेज के अंदर काम ना दिया जाए तो जो एप्लीकेंट है, जो आवेदन करता है, वह बेरोजगारी भत्ता पाने का पात्र होता है. परंतु जो उसे बेरोजगारी भत्ता मिलेगा या जो मजदूरी मिलेगी, क्योंकि 15 डेज के अंदर नहीं दे पाए लेकिन लेट दिए मान लीजिए, तो वो सब है जो 100 डेज की मजदूरी से ज़्यादा नहीं होगा, टोटल करके ही दिया जाता है. अब इसका भी कुछ नियम है कि यदि 15 डेज के अंदर उसे रोज़गार दे दिए गए और उसे सूचना दे दी गई कि आपको बुलाया जाता है काम पर, और यदि वो नहीं आता है और यदि 1 सप्ताह तक कंटिन्यू अनुपस्थित रह जाता है तो फिर उसे वह बेरोजगारी भत्ते की मांग नहीं कर सकता है, फिर अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस की मांग वो नहीं कर सकता है.
Children, role of Gram Panchayat, Janpad, district and state level institution about the employment guarantee scheme. We will read about it in the next video.